let me welcome on stage the real COVID champions, the real COVID heroes, Nitin Gaikar, social activist, Suchitra Kale, an A&M worker, and Dr. Pradeep Jai Bhave, in charge of the PHC at Jategaon village in Nashik. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। सुचित्रा दी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि A&M सबसे ज़्यादा जो काम किया है, सबसे ज़्यादा जो आपने अवेयरनेस फैलाई है, वैक्सीन लगवाया है, वो काम आपने ग्राउंड पे किया है। जब शुरुआत हुई थी तो किस प्रकार की अड़चनें आई थी आपके जर्नी में? जब हम शुरुआत करने वाले थे तब लोगों का सपोर्ट ऐसे अच्छा नहीं था, लेकिन जब हमारे यहाँ में CYD की टीम आई और संजीवनी की टीम आई, उन्होंने लोगों से और हमारे गांव में उन्होंने कैंपेन लगवाए और शूटिंग करवाई, तो गांव के लोगों को क्या होता है, बड़े बड़े लोग जो गांव में आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और शूटिंग देख के बोलते हैं कि नहीं कुछ तो भी अच्छा हो रहा है अपने गाँव में, तो उन्होंने वो शूटिंग वगैरह देखी। और कौन आया था शूटिंग के लिए? CYD की टीम आई थी और संजीवनी की टीम आई थी। अच्छा। 3 टीम थे, IBN लोकमत वाले भी थे और ये न्यूज 18 वाले भी थे। हाँ, मतलब हम लोग थे, हाँ, स्टार्स लोग नहीं थे, हम लोग थे। हाँ। तो उसके बाद आपको लगा कि फर्क पड़ा था और लोग थोड़े कॉन्फिडेंस तो के ये साथ आए थे। बड़े-बड़े लोगों का ऐसा लग के देखता है हमारे गांव के लोगों को, नहीं ये लोग आए तो कुछ तो भी अच्छा करने के लिए आए हैं, तो उन लोगों का सुनना चाहिए। तो उन लोगों को देखो, अरे हमारे गांव में लोगों को लगता था नहीं चलो हम भी टीकाकरण करवाएंगे, तो तुम लोगों के आने से वो जो हमारे टीकाकरण का तो जो बढ़ गया, जो वर्गीकरण था वो बढ़ गया, ज़्यादातर लोग आने लगे और भीड़ लगाने लगे हमें टीकाकरण करवाने के लिए, और अभी तो बहुत सारा टीकाकरण हो रहा है हमारे गाँव में। बहुत अच्छा काम किया है आपने, and I don't know how many of you know this, ladies and gentlemen. You know, a lot of the focus through the COVID crisis has been on doctors, nurses, on healthcare workers who were operating in hospitals, because that is what you were seeing. And while they deserve every bit of our appreciation and recognition, I think we owe a deep gratitude to people like Suchitra, to people like Nitin and Dr. Pradeep, because it was the ASHA workers, the Anganwadi workers who walked the length and the breadth of the country, literally on foot, to try and get the message across, to try and get people to get vaccinated. Aditya, you know, as I said, you know, you were focusing on the doctors and the nurses and the hospital workers, but the work done by the ASHA workers, done by the A&M, the Anganwadi workers was absolutely fabulous. No, that was tremendous. In fact, apart from the vaccination, before that we had launched this survey of माझी कुटुंब माझी जबाबदारी. मला वाटतं आपण त्याच्यात पण गेला असाल, घरोघरी गेला असाल. Exactly, तुम्ही जे घातलंय ते बिल्ला. And they went home to home, trying to ask every family whether anyone had a COVID case in their house or any other, you know, sort of a condition which is underlying a comorbidity. So these things actually came up, and we had so many conditions that came up in this survey of the entire state, which a lot of people didn't know about their own selves. So that was another thing. So how for is us. all of that information now helping you Now make it is better helpful. decisions? Exactly, because now you can actually see the state in a light of where your healthcare really stands. How can you plan the next few steps for healthcare? And you know, with so many private partners and of course government help coming in, you have your district facilities, you have your village facilities, primary healthcare centers. We now know what to equip it better with. So that is one of the things. If I may ask her one thing, Please. महिलांचं कसं वॅक्सिनेशन रेट आहे का आपल्या गावांकडे? म्हणजे महिला घ्यायला उत्सुक आहेत का हो, वॅक्सिन? अगोदर नव्हत्या, पण आता ह्या कार्यक्रमापासून बऱ्याच महिला उत्सुक झाल्या, स्वतःहून म्हणतात की आम्हाला यायचं लसीकरणाला. बऱ्या प्रमाणात सपोर्ट येतात पण आहे. आता. हो हो, बऱ्या प्रमाणात बिकॉज येतात. इनिशियली हमने देखा कि महिलाओं में काफ़ी कम वैक्सीनेशन रेट था, फिर मुंबई हो, पूना हो, कहीं सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने ऐसे स्पेशल डेज रखे महिलाओं के लिए, और तभी वैक्सीनेशन उनके लिए बढ़ता था. तो वही हम सोच रहे थे कि क्यों जब नॉर्मल डेज होते हैं तब उस दौरान क्यों नहीं आते, तो ये स्पेशल डेज में काफ़ी वैक्सीनेशन बूस्ट हुआ. In fact, you know, it's great that you bring this point up, because that's what we heard from healthcare workers who joined us, from MP who joined us from Rajasthan, saying exactly the same thing, that the women were the most hesitant to actually get vaccinated, and it took a lot of convincing to get the women to come on board. Either hesitant or not being able to reach out Or there. not being able to reach or access, absolutely. As a woman, Kirti, you know, we've talked about vaccine inequity, but, you know, even gender plays a role in just being able to access a vaccine. I think, I mean, that's what I was asking her, trying to figure out what possibly is the reason why women are more hesitant. And I guess it is to do with the, you know, the gender, the idea of being a woman, which is they are going to go ahead and, you know, become mothers someday, you know, get married. So
So I think that's a big, it's एक औरत को बहुत एसोसिएट किया जाता है कि शादी होगी, माँ बनेगी. Right. So I think it's almost understood कि when it comes to something like vaccination, जहाँ पे anyway बहुत सारी misinformation फैली होती है, a woman is more hesitant compared to a man, saying what's going to happen, how will it affect me, Yeah, that certainly could be one aspect, or maybe they're just not prioritized, like they're not prioritized for things like education, etc. Well, that is something that I think we need to do something about. Absolutely, absolutely, as a country and as a society. But नितिन जी, आपका हेल्थ केयर से तो कुछ लेना देना नहीं है. आप फिर कैसे इस कैंपेन में जुड़ गए? पहले तो नमस्ते भारत, जो अच्छा प्रोग्राम किया, ये स्टेज हमको दिया, ये न्यूज़ 18 और संजीवनी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे और आप सब यहाँ पे मिल रहे हैं. यहाँ कोविड में ज़्यादातर मौतें हो रही थी, घबराहट से हो रही थी ज़्यादा, क्योंकि लोगों को सहारा नहीं मिल रहा था, घर वाले भी उनको सहारा नहीं दे रहे थे. जब भी जो कोविड पेशेंट रहता था, मैं उनके पास जाता था, उनको अवेयरनेस देता था कि कुछ नहीं होता. ऐसे मैंने काम शुरू किया तो जो लोगों एक्सपायर हो गया तो उनको हमने अंतिम संस्कार भी किया. जो कोई आ नहीं रहे थे तो वो ऐसे ही डेड बॉडी रहती थी, तो मैंने खुद जाके उनको अंतिम संस्कार किया. 260 लोगों को सवेरे और शाम में जो पौष्टिक खाना होता था वो खाना देने का काम किया. और ये मोटिवेशन ये ऐसा हुआ कि मेरा फादर्स डेथ हुआ है, 15 साल हो गया. 15 साल में मेरे पिताजी को कैंसर था. तो जो अपना घर रहता है तो घर में परेशानी कैसी होती है, एक अपना आदमी जाता है तो वो परेशानी समझ के मैंने ये काम शुरू किया. और ऑक्सीजन भी नहीं, जहाँ भी कम था वहाँ मैं जाके ऑक्सीजन अवेलेबल करता था. रात में 2 बजे सोता था और सवेरे 6 बजे उठ कर फिर वापस वही काम में लगता था. नितिन जी, सुपर हीरो तो आप हैं. यू आर द रियल हीरो. और बहुत हम सबकी तरफ से थैंक यू, आपने जिस प्रकार का काम किया है कोविड में. पर प्रदीप जी, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, आपका किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा था इस दौरान? हाँ, सबको नमस्कार. पहले 1.5-2 साल से हमारे हेल्थ में आई एम वर्किंग एज मेडिकल ऑफिसर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर. इट इज़ इन ट्राइबल एरिया, जहाँ पे लोग निरक्षर है, लोगों को दिन ब दिन काम करना पड़ता है और अंधश्रद्धा है उनके मन में. तो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा था तो रिस्पांस बहुत कम मिल रहा था. लोगों को ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन लेने से तकलीफ हो जाएगा, 2-4 दिन हमको तकलीफ होगा तो एडमिट करना पड़ेगा, ऐसे बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे. हमारी पूरी टीम आशा वर्कर से मेडिकल ऑफिसर तक सब काम कर रहे थे. लेकिन जब संजीवनी का टीम आ गया, उसने घर घर जाके गांव-गांव जाके ऐसी इतना अच्छा किया तो उनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो दूर हो गया. और जो ट्राइबल बेल्ट में रास्तों का प्रॉब्लम रहता है, आने जाने का साधन कोई नहीं रहता, तो संजीवनी का टीम CYDA के माध्यम से उन्होंने बस फैसिलिटी दिया, पिकअप एंड ड्रॉप बैक फैसिलिटी देने से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया. जो सेकंड फेज में डेथ हुए थे कोविड से, वो डेथ होने के बाद में वो घर जाके वो संजीवनी के टीम ने उनको कन्विंस किया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसके आगे किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके लिए टीकाकरण यही जरूरी है. और इतने अच्छे तरह से हो गया. मेरा जो पूरा टारगेट है, आई हैव अचीव्ड 100% टारगेट. अरे वाह, कंग्रॅच्युलेशन्स. कुठच्या जिल्ह्यातून आहेत आपण? 20 विलेजेस. नाशिक मधून? नाशिक जातेगाव PSC. अच्छा. Yes, sir. Unfortunately, I got infected in April. It was very dangerous and critical situation, ma'am. But you have managed, and you have managed with aplomb, sir. So salute to you, and thank you so much for doing. It was done by the friends. Yes. I was secondary infected by black fungus. Oh. I have to undergo nasal debridement. I have to undergo dental debridement. I have removed 8 to 10 teeth. But after 2 months admissions, I completed my treatment. It was shortage of remdesivir, tocilizumab. After black fungus, it was shortage of amphotericin. But by team, I am here, and it is nothing but the